Okay, hello students. Today we are going to look for class 8 exercise 5.1 question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question 3 and answer the following questions. See, in the last video I have explained how to make a frequency distribution table and about the telemarks using the class intervals. Now in this video we are going to look for question number 4. Question number 4 is based on my last video, that is you have to look for that video if you don't know how to make the frequency distribution table. On the basis of that data we will be solving this question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. Question number 3, this is question number 3. This we have seen in the last video. Okay, in this we have seen how to make a frequency distribution table and यहाँ पे जो डेटा आपको दिया है इसकी मदद से आपको हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दैट यू हैव टू आंसर. Fine. So see, this is the data, these are the class intervals given. On the basis of this you have to make the histogram. See, the class intervals are like 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830 and so on, and it goes till 890 to 900. Fine, so let's make the histogram. The histogram will be looking like this. Okay, see, what is the difference between a histogram and a bar chart? Bar chart is what, where you are making individual bars and it is not based on the data which is provided in this. While in the case of histogram there will be no gap between the bars. You can see the bars are made without gap, and the histogram is made with the help of the data where you have been provided with the class intervals. यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, जैसे 800 से 810, 810 से 820 कुछ साइकिल चल रहा होगा. ठीक है, क्लास इंटरवल हम इसको बोलते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था. दिस इज़ द क्लास इंटरवल्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे. किस तरीके से बनाना है, अगेन इन द सेम मैनर यू हैव टू ड्रॉ टू एक्सिस, दैट इज़ वन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल वन इज वाई एक्सिस. On y axis you have to represent the quantitative data and on x axis you have to represent the qualitative data. Qualitative data, it means you have to represent the wages. See, here what has been given, the question is actually this. So यहाँ पे आपको वीकली वेजेस दिए हैं 30 वर्कर्स के जो फैक्ट्री में काम करते हैं और उनके वेजेस क्या हैं ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हैं. इसका हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल फॉर्म कर लिया. ठीक है, तो हमें इजी हो गया. तो वो क्लास इंटरवल हम सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे एक्स एक्सिस में. ठीक है, सो दीज आर व्हाट, एक्चुअली ये क्लास इंटरवल क्या है, सिग्निफाई कर रहे हैं वीकली वेजेस सिग्निफाई कर रहे हैं. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 800 से 810, 810 से 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900. So from 800 to 900, our all the weekly wages has been divided into different class intervals. This was all about x-axis. Now let us move to y-axis. Y-axis में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखना है. अब देखो, ये नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए आपको स्केल चूज़ करना पड़ेगा. आप चाहे बारग्राफ बनाते हो या हिस्टोग्राम बनाते हो, दोनों में आपको स्केल चूज़ करना होगा. तो स्केल हम कैसे चूज़ करेंगे, यू हैव टू लुक फॉर दिस फ्रीक्वेंसी की मदद से आप स्केल चूज़ आसानी से कर सकते हो. देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 9. आई कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर 9. और बाकी जो नंबर्स आप देखो 3, 2, 1, 4, 1, 1, 3, 5 ऐसे ही नंबर्स हैं. इसका मतलब जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पे जो डेटा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है. अगर डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, जो स्केल आप ले रहे हो वो स्केल आप 1 ले सकते हो. मीन्स 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 वर्कर और वॉट एवर हैज़ बीन गिवन टू यू. फाइन, सो हियर आई बी टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 worker. It starts from 0 because the meeting point of x-axis and y-axis. Now again it starts from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
maximum is 9, so you can go till 10. Fine. Now see, the histogram from the above frequency table is given here. Okay, the histogram will be given here. So let us make, on y-axis we have written the values. Now let us see here the frequency distribution table. Let us make the bars. 800 से 810 के बीच में आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है. इसका मतलब आपको क्या करना है, 800 से 810. देखो बार ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे थे, बीच में हम स्पेस छोड़ रहे थे, लेकिन हियर यू डोंट हैव टू लीव द स्पेस बिकॉज द डेटा हैज़ बीन गिवन इन द क्लास इंटरवल. तो जो डेटा है 800 से 810, फिर 810 से 820 इस तरीके से है, 810 से 820. तो ये डेटा जो है ना वो आप देख सकते हो लिंक है. तो हम यहाँ पे बार्स बनाएंगे तो उसमें जगह नहीं छोड़ेंगे बीच में. और ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, मैंने एक्सप्लेन करा था. ये आपका है लोअर लिमिट और ये है आपका अपर लिमिट. इसमें कितना वैल्यूज़ आएंगी आपकी 800 से 810 में, इसमें 800, 801 एंड लाइकवाइज 809 तक आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. 810 जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा. फिर यहाँ पे 810 से 819 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी. फिर यहाँ पे 820 इधर आएगा, 820 से लेके 829 तक इस क्लास में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 800 से 810 में वीकली वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रहा है, ये वाला वीकली वेजेस 3 वर्कर्स को मिल रहा है. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ओके यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द बार, यू हैव टू गो टिल 3, स्टॉप इट, stop there and again come down. This is my first bar. Again you have to look for the table. 810 से 820 तक कितना वर्कर्स है, 2 वर्कर्स है. तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट कर देना है, यहीं से, नो गैप. दिस इज हिस्टोग्राम. 2 हो गया यहाँ पे, 2 से आपका आ गया, देखना है 2 कहाँ पे, 810 से 820 में हमारे 2 वर्कर्स हैं. अगेन कम डाउन. फाइन. अब 810 से 20 तक का हो गया हमारा, 820 से 830 तक का देख लेते हैं. देखो 820 से 830 में कितने वर्कर्स हैं, 1 वर्कर हैं. सो अगेन नो गैप, यहाँ पे हमने 1 पे मार्किंग कर दिया. 20 से 30, 30 से 40, 830 से 840 में कितने वर्कर्स हैं, 830 से 840 देर आर 9 वर्कर्स अवेलेबल, मैक्सिमम वर्कर्स. सो 830 से 840 में मेरे कितने वर्कर्स आ गए, 9 वर्कर्स आ गए हमारे. 9 जहाँ पे हो ना वहाँ पे आपको कोइंसाइड करना है इसको. मेक अ बार टिल 9 ओके एंड अगेन कम डाउन. दिस इज 830 से 840 में हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर, 9 वर्कर्स आर देयर. Then 840 to 850, 5 workers. So 840 से 850 में हमारे 5 वर्कर्स आ गए. 50 से 60 में कितने हैं, 1 वर्कर. 860 से 70, 860 से 70 में कितने वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स हैं. सो 850 से 60 में वी हैव ड्रॉन फॉर 1. 860 टू 70, लेट्स सी हियर, 860 टू 73. सो 60 से 70 में 3 तक आ गया. ओके यहाँ पे 3 तक हमने मार्किंग कर दिया. इसी तरीके से आपको 70 से 80 में करना है. वहाँ पे कितना दिया है, टेबल में अगर आप देखेंगे तो 1 दिया है. तो 1 हो गया हमारा 1 वर्कर बिटवीन द वेजेस ऑफ 870 टू 880, 880 टू 890 एंड लास्ट की अगर हम यहाँ बात करें 890 सो 900 टू 900 देर आर 4 वर्कर्स हु आर गेटिंग द वेजेस बिटवीन 890 टू 900. सो 4 वर्कर्स आ गए यहाँ पे. ओके दिस वॉज द लास्ट वन. सो दिस इज हाउ अवर हिस्टोग्राम हैज़ बीन ड्रॉन. ओके दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ. नाउ let us see for some of the questions what they are asking. Which group has the maximum number of workers? देखो which group has the maximum number of workers, this question can be answered by seeing the graph itself. आप ग्राफ देखोगे तो उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स हमारे
830 से 840 में जिसको वेजेस मिल रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं. सो व्हाट वी विल बी राइटिंग द ग्रुप विच इज़ द ग्रुप 830 to 840 maximum number of workers. 830 to 40 has the maximum number of workers. Then what is the question they are asking? Second question. Let's move to second question. How many workers earn rupees 850 and more? 850 और 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स को मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 840 से 50 इसमें 850 नहीं आता है. 850 नहीं आएगा. 850 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. 850 और उससे ज़्यादा मतलब 850 और 60 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? 1. उसके बाद 860 से 70 भी लेंगे. 850 के बाद में जितने भी क्लासेस हैं उसमें जितने भी वर्कर्स हैं वो सब आपको प्लस करना होगा. ओके, एंड देन यू विल गेट द वर्कर्स हु आर गेटिंग 850 और मोर देन दैट वेजेस. So mind well, see students are making mistake here. They are taking this class interval also, but this class interval you don't have to take. Why? Because in this class interval 850 is not included. 850 is not included and they are asking you कि 850 और 850 से ज़्यादा किसको मिलते हैं. तो हम ये वाला क्लास इंटरवल इंक्लूड नहीं करेंगे. इसके बाद के जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड कर देंगे. So 1 plus 3 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10. So there are total 10 workers. Okay, see here you can see I have added after 850 and I am getting how many workers? 10 workers. Then next question is what? How many workers earn less than 850? 850 से कम किसको मिल रहा है? 850 से कम किसको मिल रहा है? तो देखो ये वाला जो आपका क्लास इंटरवल है ना, इसमें आपको 850 से कम तक मिल रहे हैं. जितने भी ये हैं पहले वाले तो सारे कम ही होंगे, और ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसमें 840 से 849 तक मिल रहा है. सो यू हैव टू ऐड टिल हियर 3 plus 2 5 plus 1 6, 6 plus 9 15 plus 5 20 workers. Total how many workers? 20 workers are earning the salary less than 850. So these are the answers we have solved for our histogram. See, mind well, again I am telling, again I am repeating, here students are making mistake in taking the class intervals limit. You have to see that from 800 to 810 lower limit is 800 and higher limit is 810, which has not been included in this interval. It will be included in the next interval. You can go till 809. इधर जो range आपकी आएगी वो 800, 801, 802 until 809 is included. The same will be following for other intervals also. Fine. So this was all about question number 4. How to make a histogram. I hope everybody understood all the things properly and how to make a histogram. Thank you.